students, welcome to the course of icing and compressor. Today we are going to start two-stroke engine. But before going through the two-stroke engine, we should recall our previous lecture, that is four-stroke engine. In four-stroke engine, we discussed about SI engine and CI engine. SI engine is popularly known as spark ignited engine, which is the cycle given by a famous scientist Otto. His surname is Otto. O-double-T-O. Due to his name, SI engine is also known as Otto engine or Otto cycle. In the year of 1876, he gives the SI engine to name. SI engine is also known as constant volume cycle. Here, the name constant volume is comes from when the heat is added in the engine. At that time, volume is constant, means constant volume heat addition process. Now come to CI. CI process is given by famous scientist Diesel. As clear from name, CI engine uses diesel as a fuel. It is also known as constant volume process. Constant pressure process means heat is added when the pressure is constant. Here in SI engine, fresh air plus fuel mixture is sucked inside the engine from inlet valve. But in the case of CI engine, only fuel is added in the system through inlet valve. We also see that the compression ratio for SI engine is 6 to 10. We already discussed that compression ratio is nothing but C is equal to total volume upon clearance volume, VT upon VC. This VT total volume includes swept volume plus clearance volume upon VC. So air and fuel mixture is added in the inlet valve, and here only fuel is added in the inlet valve. But the compression ratio is different for both the engine. In SI engine, the compression ratio is from 6 to 10. 10 is the upper limit. And in CI engine, as named from our topic, compressed ignited means highly compressed air in here. 16 to 20 compression ratio कहाँ पर देख रहे हैं हम लोग? C is equal to VT upon VC. Due to highly compressed air, the intense amount of temperature is already there, and then fuel is injected. So यहाँ मेरा था fuel is injected and fuel is burned at the stage we are giving the fuel in the system with the help of injector. We also see the comparison between SI engine and CI engine. So these are our discussed previous classes topic. Now we are going to study two-stroke engine. In the syllabus, it is only for introduction
or we can say that it is only for the comparison for two-stroke and four-stroke engine. The two-stroke engine is invented by famous scientist Clark. Famous scientist Clark in the year of 1878. Mark the year, because in the year of 1876, Otto discovered the SI engine, petrol engine. From there, Clark came to know that if if in auto cycle there is four stages or four stroke, if I can reduce the four stroke so that power can be generated more for the same size of engine. तो क्लार्क ने यहाँ क्या दिमाग लगाया कि ये फोर स्ट्रोक इंजन को टू स्ट्रोक इंजन में कन्वर्ट किया। इसके लिए उन्होंने फोर स्ट्रोक इंजन को अच्छे से स्टडी किया और पाया कि सिर्फ और सिर्फ पावर स्ट्रोक, दैट इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक में हम लोग को पावर मिल रहा है एक स्ट्रोक में, और रिमेनिंग जो टू स्ट्रोक है एक्सेप्ट सक्शन स्ट्रोक, वहां हम लोग को पावर नहीं मिल रहा है। तो क्लार्क ने टू स्ट्रोक इंजन का इन्वेंशन किया और कंप्रेसर एंड एग्जॉस्ट को एक ही रिवॉल्यूशन में कंप्लीट कर लिया। हम लोग ये जानते हैं कि फोर स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट दो रिवॉल्यूशन मूव करता है 360 एंड 360, बट इन टू स्ट्रोक इंजन क्रैंकशाफ्ट और क्रैंक मूव ओनली वन रिवॉल्यूशन, यानी 360 डिग्री में ही इसमें सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट हो जाता है। लेकिन ये सब प्रोसेस एक साथ चलता है, सक्शन कंप्रेशन एक साथ चलता है, पावर एंड एग्जॉस्ट हम लोग को एक साथ चलता है। यानी दो स्ट्रोक को मर्ज करके हम लोग इसको दो स्ट्रोक बना लिए। इसको फोर स्ट्रोक है तो पहले दूसरे को मर्ज किया गया एंड थर्ड फोर्थ को मर्ज किया गया, टू स्ट्रोक इंजन मिल गया हम लोग को। ठीक है, तो ये क्लार्क साहब का यहाँ पे दिमाग था। उन्होंने ऑटो साइकिल को अच्छे से स्टडी किया और फिर अपना यहाँ से टू स्ट्रोक इंजन उन्होंने बनाया। ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू डीपली इन द टू स्ट्रोक इंजन, आई विश टू ड्रॉ अ सिमेट्रिक डायग्राम फॉर टू स्ट्रोक इंजन। Our two-stroke engine is look like this type, but in a different book. You can see in the different way. It is spring loaded inlet valve. This crankcase
piston deflector. You can see one by one the function of all these parts. Spark plug, exhaust valve, separator, और ट्रांसफर पोर्ट. Current case. So these are the important part of our two-stroke engine. Here we see that there is one inlet valve and one exhaust valve. In four-stroke engine, we see that the crankcase is out of the engine, but here the crankcase, including crank, is the part of our piston arrangement. Means air fuel mixture will be moving inside this area, means around the crank. But in the four-stroke engine, we see that the crank is the other, means it is separated from our engine. Now let's see what is happening in this diagram. Initially, when piston moves from bottom to top, means when it moves from bottom to top, exhaust port will be closed. Exhaust flow port will be closed and spring loaded inlet valve will open. अब यहाँ पे स्प्रिंग लोडेड इनलेट वाल्व को ओपन कर दिए और फ्रेश एयर एंड फ्यूल मिक्सचर इन कर गया कहाँ पे, क्रैंक केस पे. क्रैंक केस जो है यहाँ पे फ्रेश एयर एंड फ्यूल मिक्सचर आ गया और उसी स्टेट पे ये पिस्टन हमारा अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है और एग्जॉस्ट पोर्ट को उसने क्या किया, बंद कर दिया. ठीक है, एग्जॉस्ट पोर्ट को बंद कर दिया. नाउ this air fuel mixture comes in the upward direction from with the help of transfer port. ट्रांसफर पोर्ट के सहायता से ये एयर और फ्यूल मिक्सचर कहाँ चला गया, ऊपर जा रहा है, ऊपर पहुंच गया. ये डिफ्लेक्टर जहाँ देख रहे होंगे आप लोग डिफ्लेक्टर, ये डिफ्लेक्टर एयर फ्यूल मिक्सचर को पिस्टन के सामने, स्पेशली स्पार्क प्लग के सामने ले जाता है. जैसे ये ऊपर पहुंचा और एग्जॉस्ट पोर्ट पूरा बंद हो गया, fully closed, then a spark is inducted in the system. A spark plug is inducted in the system and the compressed air fuel mixture started burning at the instant the spark is inducted in the system. Then the expansion stroke is started. Here we see that all the stroke is in within the two stroke, means there is no separate suction, compression and expansion stroke. One by one
simultaneously all the stroke is moving on. Now यहाँ पे सक्शन अब इग्निशन हो चुका है, अब एक्सपेंशन स्ट्रोक पे हम लोग हैं। जैसे एक्सपेंशन स्ट्रोक स्टार्ट हुआ, ये मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जो हमारा पिस्टन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूविंग स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको ले जाएगा और हम लोग को यहाँ से पावर आउटपुट मिल जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही ये डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा, सॉरी एग्जॉस्ट पोर्ट, इसको एग्जॉस्ट पोर्ट बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो जाएगा और एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होते ही जो बर्न एयर फ्यूल मिक्सचर है, जो कंबसन है बर्न, वो एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू कहां चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में। और अगेन ये जो एरिया है जहां पे बर्न एयर फ्यूल मिक्सचर था, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। समझ में आया? एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। इनिशियली हम लोग का पिस्टन अरेंजमेंट ऐसा है कि स्प्रिंग लोडेड वाल्व ओपन हुआ, स्प्रिंग लोडेड वाल्व में एयर एंड फ्यूल मिक्सचर इन हुआ। एयर एंड फ्यूल मिक्सचर इन होते ही ये एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो जाता है, बट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर पोर्ट जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है और कहां जाता है, इन दिस एरिया जो हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम रखते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ डिफ्लेक्टर air fuel mixture comes in the center of the piston and the spark is ignited in the system. At the instant spark is ignited, then the expansion stroke started and the piston started coming down. अब पिस्टन जैसे ही नीचे आएगा, हम लोग को पावर वहां से मिलना शुरू हो गया है। पिस्टन के नीचे आते ही एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा and then the burnt or combusted air fuel mixture is come out of the system and the atmospheric pressure is created inside the system, and again this process is one by one in continuation started. Now those who wanted to write down what is going on or what we studied in the two-stroke engine, right, one by one जो भी हम लोग ने अभी तक डिस्कस किया है उसको वन बाय वन पॉइंट वाइज आप लोग लिखेंगे, ठीक है। तो टॉपिक डालेंगे टू स्ट्रोक इंजन, जैसा कि हम लोग पहले लिख चुके हैं। पहला स्टार क्या है, डगल क्लार्क इन्वेंटेड द टू स्ट्रोक इंजन। किस ईयर में, 1878 में। आफ्टर द 2 year the invention of our SI engine. Now अगला स्टार, in two stroke engine the cycle is completed in one revolution of the crankshaft, but as we already know that in four stroke engine the cycle is completed in 2 revolution of the crankshaft. Next star, the main difference between 2 stroke and 4 stroke engine is in the method of filling the fresh charge and removing the burnt gases from the cylinder, ठीक है। तो क्या मेन डिफरेंस है, जो चार्ज फ्रेश अंदर जा रहा है और जो बर्न गैस बाहर जा रहा है, उसकी वजह से 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक इंजन में डिफरेंस है। नाउ इन 2 स्ट्रोक इंजन द 2 स्ट्रोक्स, 2 स्ट्रोक इंजन में क्या है, द 2 strokes are sufficient to complete the cycle, one for the compressing the fresh charge and the other for expansion or power stroke, ठीक है। एक ही में पहले एक ही स्ट्रोक में क्या हो रहा है, इनलेट हो रहा है और कंप्रेशन हो रहा है, और दूसरे स्ट्रोक में क्या हो रहा है,
पावर मिल रहा है, पावर स्ट्रोक एंड एक्सपेंशन भी हो जा रहा है, यानी इसके वजह से हम लोग को ज्यादा पावर मिल रहा है। यानी जहाँ पे ड्रॉबैक था, जहाँ पे हम लोग को फुल स्ट्रोक में ज्यादा हैवी फ्लाई व्हील का यूज करना पड़ता था, इस केस में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि साइमल्टेनियसली दो स्ट्रोक को हम लोग हटा के और यहाँ पे दो स्ट्रोक में ही पावर आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो फ्लाईव्हील की जो रिक्वायरमेंट थी हैवी फ्लाईव्हील की फुल स्ट्रोक में, उसके कंपेरिजन से टू स्ट्रोक में छोटा या कम पावर का या कम वेट का फ्लाईव्हील यूज करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे दो स्ट्रोक को हटा के साइमल्टेनियसली दो स्ट्रोक यहाँ पे एक साथ यूज कर रहे हैं। एक ही स्ट्रोक में यहाँ पे सक्शन हो रहा है और उसी स्ट्रोक में देख रहे हैं कंप्रेशन भी हो रहा है। सक्शन के बाद ये पिस्टन हमारा ऊपर मूव कर रहा है और पोर्ट खत्म बंद हो जा रहा है, एग्जॉस्ट पोर्ट। नाउ उसके बाद स्पार्क प्लग के सहायता से हम लोग स्पार्क इंट्रोड्यूस किए, पावर जनरेट हुआ और पावर के साथ साथ एग्जॉस्ट भी मिल जा रहा है हम लोग को, यानी दो स्ट्रोक में हम लोग को सब मिल जा रहा है। ठीक है, आगे अगला पॉइंट लिखेंगे, in the two-stroke engine the filling process is accomplished by the charge compressed in crankcase और by the blower। ठीक है, यहाँ पे चार्ज किस जाएगा, with the help of blower हम इसको इन करते हैं। अगला स्टार, the induction of compressed charge moves out the product of combustion थ्रू द एग्जॉस्ट पोर्ट। ठीक है, जो कंप्रेस चार्ज है वो हम लोग एग्जॉस्ट पोर्ट की सहायता से बाहर कर देते हैं। अगला स्टार बना के लिखेंगे, द एयर फ्यूल चार्ज इज इंडक्टेड इनटू द क्रैंक केस थ्रू द स्प्रिंग लोडेड इनलेट वाल्व व्हेन द प्रेशर इन द क्रैंक केस इज रिड्यूस्ड टू द अपवर्ड मोशन ऑफ द पिस्टन। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार है। एक और है लास्ट स्टार आज का, यानी रिगार्डिंग द थ्योरी ऑफ टू स्ट्रोक इंजन। ड्यूरिंग द एक्सपेंसिव स्ट्रोक द चार्ज इन द क्रैंक केस इज कंप्रेस्ड नियर द एंड ऑफ द एक्सपेंसिव स्ट्रोक एज वी ऑलरेडी डिस्कस। The piston uncovered the exhaust port and the cylinder pressure dropped to the atmospheric pressure। ठीक है, जो कि ये कहना चाह रहे हैं, जैसे ये पावर स्ट्रोक स्टार्ट होता है एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होना स्टार्ट हो जाता है, साथ ही साथ और जो बर्न एयर फ्यूल मिक्सचर है वो हमारे सिस्टम से बाहर हो जाता है। एंड अगेन इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्यूल fresh air will be there and the pressure inside the cylinder is atmospheric pressure। Now come to the simple PV diagram। PV diagram पे आते हैं, नीचे बना लेते हैं हम लोग। PV diagram is same as that of auto cycle। जैसा हमारा ऑटो साइकिल था वैसे इसका PV diagram है। ये हम लोग बस जानने के लिए जान रहे हैं, क्योंकि ये सिलेबस में हम लोग में डिटेल में नहीं दिया है। ठीक है, फॉर द नॉलेज और फॉर द इंटरव्यू पर्पस हम लोग को ये जानना था, उसके हिसाब से हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। नाउ कम टू द पीवी डायग्राम। इज लाइक द ऑटो साइकिल। One, two, three, four. 1, 2, 3, 4. This distance known as clearance volume। अब इतना हमें पता चल गया है, ये क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम है, ये पोर्शन अपर वाला। हाँ, एक चीज यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, एक चीज यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा हो रहा है, वो जो लाइनिंग मैंने की है वो क्या है, piston travel during the opening of the valve। piston travel during the opening of the valve। ये valve ओपन होगा और उसके पहले कितना डिस्टेंस क्या होगा, पिस्टन मूव कर लेगा। यहाँ लिखते हम लोग
piston travel that some piston travel during opening of valve. ठीक है, ये valve ओपन होगा उस दरमियान इतना डिस्टेंस हमारा जो पिस्टन है वो मूव कर जाएगा, ये जो पिस्टन है इतना डिस्टेंस मूव कर जाएगा और यहाँ से यहाँ तक ये होगा स्वेप्ट वॉल्यूम, यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा स्वेप्ट वॉल्यूम होगा। क्लॉकवाइज है यानी पावर हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। दिस इज ऑल अबाउट टू स्ट्रोक इंजन एंड टू स्ट्रोक इंजन पीवी डायग्राम। Now let's see the comparison between two stroke and four stroke engine। ये भी एग्जाम में एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, आइदर वो हम लोग से डिफरेंस पूछेगा या हम लोग से कंपैरिजन पूछेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग फोर स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक एसआई इंजन एंड फोर स्ट्रोक सीआई इंजन के बीच में कंपैरिजन देखे थे। अब यहाँ पे देखते हैं, एक साइड लिखते हैं एसआई इंजन, सॉरी फोर स्ट्रोक इंजन और एक साइड लिखते हैं हम लोग टू स्ट्रोक इंजन। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। आगे तक as clear from name, the thermodynamic cycle is completed in four stroke, suction, compression and expansion and exhaust last में। ठीक है, and as clear from the two stroke name, the thermodynamic cycle completed in two stroke means inlet and compression in one stage and power and exhaust in other stroke। Cycle completed in four stroke। Here cycle means thermodynamic cycle। Second cycle completed in two stroke। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट पावर प्रोड्यूस पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो पावर प्रोड्यूस के लिए भी हम लोग एक क्राइटेरिया चाहिए। तो क्या क्राइटेरिया रहेगा? फॉर द सेम साइज ऑफ द इंजन, मींस if the size of engine for four stroke and the size of engine for two stroke is same, then we are comparing for same size of engine। Power is less for four stroke and power is high। थर्ड कंपैरिजन, तीसरा कंपैरिजन और क्या कर सकते हैं हम लोग? वॉल्व पे है। क्या वॉल्व है? वॉल्व एक्चुएटिंग मैकेनिज्म के थ्रू ओपन होता है, किसमें? फोर स्ट्रोक इंजन में। ठीक है, और यहाँ पे टू स्ट्रोक में क्या है? वॉल्व तो था ही नहीं, क्या था? पोर्ट था। वॉल्व ओपनिंग और क्लोज टू एक्चुएटिंग मैकेनिज्म।
यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? नो वॉल्व, ओनली 4। यहाँ पे सिर्फ 4 ही है, तो हमेशा खुला ही रहता है। बंद कैसे करते हैं हम लोग? पिस्टन के मूवमेंट से। और क्या कंपेरिजन हो सकता है कॉस्ट को लेके? कॉस्ट को लेके कैसे? दो द फुल स्ट्रोक इंजन कंटेन्स suction, compression, expansion, and exhaust. The initial cost is high due to different stroke. Cost for engine, engine के लिए कर रहे हैं हम लोग, engine is high. और यहाँ पे initial cost क्या है? is low. ठीक है, लो क्यों? क्योंकि एक ही साथ यहाँ पे 2 स्ट्रोक में ही सब काम खत्म हो जा रहा है। और क्या हो सकता है कंपेरिजन? इसमें पॉइंट वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी हाई होती है इसकी फुल स्ट्रोक की। इसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगी? लो होती है। आपका मतलब यहाँ पे हाई है, लिख देते हैं हाई, कंफ्यूज करेंगे आप लोग। हाई यहाँ पे लो। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्यों हाई होती है? क्योंकि हम लोग को डिफरेंट साइकिल यहाँ पे होता है, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट की वजह से यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी लो होती है, क्योंकि 2 स्ट्रोक में खत्म हो जा रहा है। ठीक है, साइज छोटा है इसका। नेक्स्ट, थर्मल एफिशिएंसी अगेन इसकी हाई होती है। थर्मल एफिशिएंसी हाई, यहाँ पे थर्मल एफिशिएंसी लो। ठीक है, थर्मल एफिशिएंसी हाई थी, थर्मल एफिशिएंसी लो। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। कोई स्ट्रोक के एग्जांपल तो आप लोग जानते ही होंगे, कार्स, ट्रक, बाइक्स एक्सेट्रा, बहुत कुछ है। 2 स्ट्रोक इंजन कृपया उतना यूज नहीं होता फ्रीक्वेंट में। मोपेड याद होगा, पुराना मोपेड, स्कूटर, जहाँ पे लाइट वेट इंजन, जहाँ पे लाइट वेट इंजन की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे यूज होता है। एक आधा का पहले हैंड स्प्रेयर, ठीक है। ये सब क्या है? कुछ एग्जांपल है 4 स्ट्रोक इंजन के एंड 2 स्ट्रोक इंजन के। दिस इज ऑल अबाउट आवर 4 स्ट्रोक and 2 stroke engine. From tomorrow we can see the some numerical problem or some starting of numerical problem or some background of numerical problem. It is all about 4 stroke SI engine and CI engine and 2 stroke engine. Comparison between 4 stroke and 2 stroke engine. It is very important for your exam point of view. It is examiner favorite question that write the difference between 4 stroke and 2 stroke or the compare 4 stroke and 2 stroke engine. Now, thank you all of you.